I'll start. Am I audible? Yes, yes. Okay. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। दाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Thank you, Parth. Hare Krishna. We have our Yatra leader, Bhaurup Narsimha Prabhuji. Prabhuji. Jai. Hare Krishna Prabhuji. I am trying to contact Maharaj. Not yet joined. We could not identify which is the ID from here. If we can identify that, then we can highlight and bring Maharaj onto screen. Acha, he didn't come here. I think he will come here. He will use his own name, Vijay Bhagavata. Okay. Bhakti Vijay Bhagavata. Okay. So he's not, Maharaj is not coming. Okay. Then Kirtan or something can continue, Prabhu. Okay. Parthu? Yeah, okay. Would you like to do the other one? Yeah, okay. Listen, just here once. Vijay Bhagavata Maharaj. Parth, you can unmute, na Parth? Yes, Prabhuji. Yes. Radhe Jaya Jaya Madhava Daiti. 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 Gokula Taruni Mandala Maite. Gokula Taruni Mandala Mahite.
गोकुल तरुणी मंडलमयिते गोकुल तरुणी मंडलमयिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते 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 वृषभानुदधि नव शशिलेखे वृषभानुदधि नव शशिलेखे वृषभानुदधि नव शशिलेखे वृषभानुदधि नव शशिलेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे 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 राधे जय जय माधव दयिते 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 करुणा कुरुमयि करुणा भरिते करुणा कुरुमयि करुणा भरिते करुणां कुरुमयि करुणा भरिते करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनाक सनातन वर्णित चरिते सनाक सनातन वर्णित चरिते सनाक सनातन वर्णित चरिते सनाक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते 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 गोकुल तरुणी मंडलमयिते 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 राधे जय जय माधव दयिते
कुलतरुणी मण्डलमहिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। We can have more kirtan, Prabhuji, or 5 minutes, or by Hare Krishna. yes, Hare Krishna, Prabhuji. 5 minutes back, I have personally contacted him and I spoke to him. So he is in a class. So he told that, yeah, give me 5 minutes. 5 minutes, maybe it will take 10 minutes. Yes, Then yes, I told that, okay, Maharaj, take your own time. yes, 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 yes. So we can do this kirtan. Yes, yes. So whenever he comes, then we can conclude it. Yes, We yes. can chant, and then as Maharaj comes, then we can immediately stop. It will be better. Yes, yes. We can chant one round, meaning till Okay, whatever yeah, time. please dedicate that chanting to this Rajeshwara Yadav Brother-in-law. brother-in-law. He is very young, 37, and he got a blood clot, and one side is paralyzed. He's in the ICU. Okay. Okay. Yeah, Ravipati Prabhu, you can lead, Prabhuji. Okay. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Maharaj हरे came already, कृष्ण bro. Maharaj has come up, कृष्ण bro. हरे 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 राम Yeah. राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुरूप नरसिम्हा प्रभु जी। Okay, Maharaj is already joined. Yes. Maharaj, please accept our humble obeisances. Hare Krishna. Maharaj. Pranam. Yeah, that pranam. Please accept my humble obeisances. And sorry for the immediately after the program, immediately you are joining. Okay. Anyhow, this is camp devotees. Earlier we cannot make also. Okay, Rasamrata Prabhu, can you introduce Maharaj to our group in Hindi? Yes, Prabhuji. Yes. Thank you, Prabhuji. Thank you. हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। तो हमारे यात्रा लीडर हिज ग्रेस बहुरूप नरसिम्हा प्रभु और सारे भक्तों के बिहाफ पे हम आपका स्वागत करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है और उनकी और भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन करता है। भगवान कलयुग में पुनः श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं और ये भगवान से अभिन्न है और संक्षेप में यह भगवान की सर्वोच्च लीलाओं का वर्णन करता है। तो आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे बीच परम पूज्य भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज आज पधारे हैं, जो इस सर्वोच्च साहित्य श्रीमद् भागवतम पर हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो शायद आप में से बहुत लोग महाराज को जानते हैं, परंतु भगवान श्री श्री राधा माधव, श्री श्री पंच तत्व, श्री नरसिंहदेव और श्रीला प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए, सभी भक्तों की जानकारी के लिए जो आज नए जुड़े हैं हमारे साथ में, और अपनी शुद्धिकरण के लिए दो शब्द हम महाराज के बारे में बोलना चाहते हैं। सो परम पूज्य भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज का जन्म मिदिनापुर में हुआ था और भगवान के प्रति आकर्षण के द्वारा वे इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए और परम पूज्य श्रील जयपताका स्वामी महाराज से दीक्षा ग्रहण की
और लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और महाराज ने इनको ये भक्ति विजय भागवत स्वामी इस तरह का नाम दिया है ताकि वे भागवत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके। सो महाराज श्रीमद् भागवतम से बहुत प्रेम करते हैं और कई जगहों पे मुख्य रूप से म्यूट कीजिए बाकी लोग। मुख्य रूप से बंगाल मायापुर में और बांग्लादेश में भागवत कथा के द्वारा भगवान का प्रचार करते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम महाराज को बड़े ही प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करके अवतारी देश भक्त वृंद के द्वारा स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। परम पूज्य भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद प्रभु रसामृत प्रभु। सो ये हिंदी में होगा क्या बांग्ला में होगा? हिंदी में है ना शायद। प्रभु जी आई थिंक रसा प्रभु, हाँ क्या महाराज अगर दोनों कर सकते हैं, मिक्स बंगाली और हिंदी सब ये है। मतलब बांग्ला एंड हिंदी, यहाँ पे बांदी भाषा, बांदी क्या बोलते हैं, बांदी भाषा। यस, यहाँ पे नामटा का है, राधा माधव कुटीर का है, डिवोटीज है, और अवतारी देश का डिवोटीज सब स्प्रेड है महाराज। हिंदी सभी समझते हैं ना? आई थिंक सभी बंगाली महाराज तो महाराज को दो बार बोलना ना पड़े। काफी बेहतर होगा क्योंकि काफी नेपाली डिवोटीज भी ज्वाइन किए हैं। हिंदी बेहतर है महाराज, ताकि आपको दो बार रिपीट ना करना पड़े। ओके। हरे कृष्णा सुरेश्वर जनार्दन प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, राधा माधव नामट्टा से वो लोग ने गार्लैंड लेके आए। तो सुरेश्वर जनार्दन प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक मिनट महाराज को। यस हाँ महाराज जी, अपना गार्लैंड आप स्वीकार करिए राधा माधव नामट्टा से, हमारे सुरेश्वर जनार्दन प्रभु, और वहां से उन्होंने आपके लिए गार्लैंड ऑफर कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यू कैन ऑफर द गार्लैंड। हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा महाराज। जय महाप्रसाद की जय। जय हरि हरि बोल। थैंक यू महाराज, थैंक यू वेरी मच। तो गार्लैंड तो हुआ, महाप्रसाद भी है शायद। हाँ से महाराज। अच्छा ठीक है, काल के एकादशी तो। So can I start, right, Rasamrita Prabhu? Yes Maharaj, please. The floor is yours. So it will be 10 Indian, 10 o'clock or more? महाराज यहाँ पे अभी 8 बजा है, तो 1 घंटा एटलीस्ट, मतलब 10:30 तक आप जा सकते हैं इंडिया टाइम। 10:30। उसके बाद 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट क्वेश्चन को। यस यस, क्वेश्चन आंसर्स 10-15 मिनट प्लीज कीप। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तबिंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दुबई। तो हरे कृष्णा, मैं बहुत आभारी हूँ सारा दिन। तो भाद्र पूर्णिमा में भागवत की चर्चा हमारे इस्कॉन इंटरनेशनल लास्ट कोई साल ये भाद्र पूर्णिमा के बारे में बहुत सारी फेस्टिवल बनाए। तो इस साल जुलाई 15 से स्टार्ट हुआ ये भाद्र पूर्णिमा। अभी तो सितंबर 15 हो गया, मतलब 2 साल हो चुका है, 2 महीना हो चुका है। फिर 20 तारीख को भाद्र पूर्णिमा एक्चुअली तिथि। भाद्र पूर्णिमा के दिन में बहुत भागवतम की आराधना, भागवतम की पूजा और भागवतम की दान, बहुत सारे कार्यक्रम है। तो ये भागवतम क्या है? भगवान धरती पर आते जुग जुग में। गीता में भगवान ने कहा, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम जुग जुग में धरती पर अवतरण होते हैं। तो भगवान जगत में आते हैं हर युग में। सत्य युग में भगवान का बहुत सारे अवतार है, त्रेता, द्वापर, कलि युग। और हम लोग भी देखते हैं ये भगवान भारत में ही अवतीर्ण होते हैं। भारत भूमि में ही अवतीर्ण होते हैं। जैसे सत्य युग में भगवान भारत की उत्तर दिशा में बद्रीनाथ के रूप में आविर्भूत हुए। सत्य युग में बद्रीनाथ। हेलो, 1 घंटा परे करबेन। तो सत्य के बाद त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान अवतीर्ण हुए भारत के दक्षिण दिशा में रामनाथ। इसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान आविर्भूत हुए भारत के पश्चिम दिशा में द्वारकानाथ। ये 3 नाथ हुए, बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारकानाथ। कलि युग में और एक नाथ बाकी, जगन्नाथ। भारत के पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल, मतलब बांग्लादेश। ये बहुत भाग्यशाली है क्योंकि भारत के पूर्व दिशा में, मतलब भारत के पूर्व दिशा तो और कोई स्टेट भी आते हैं, मान लीजिए उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, ये सब भारत की पूर्व दिशा में आते हैं। तो जगन्नाथ रूप में कलि युग में आविर्भूत हुए। लेकिन भगवान के जगन्नाथ के रूप में कलि युग में आए। भगवान का और 2 अवतार है कलि युग में। एक है हरि नाम। हमारे बांग्ला में एक गीत है, जे नाम श्री कृष्ण भजन निष्ठा करी नामेर सहित आছেন আপনি श्रीहरि। नाम साक्षात भगवान है। जय नाम से कृष्ण। नाम और कृष्ण अभिन्न। जो हरि नाम हम लोग को मिला है गुरु से, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम साक्षात भगवान, भगवान के रूप, जय नाम। और जगन्नाथ भगवान, भगवान के कलियुग में पहला अवतार है हरिनाम, दूसरा अवतार है भागवतम और तीसरा है जगन्नाथ। तो भगवान के पहला अवतार हरिनाम, हम लोग को हरिनाम मिला है। ये हरिनाम भजन निष्ठा करी, बहुत अटेंटिवली, निष्ठा भर के, निष्ठा सहित हरिनाम जपा करना चाहिए। लेकिन हम लोग का निष्ठा नहीं आता है हरिनाम जप में। जब हरिनाम जप करने चालू करते हैं, कभी कभी नींद आ जाते हैं, कभी कभी मन इधर उधर भटकता है, मन इधर उधर जाते रहते ही। कभी कभी हाथ में जपमाला लेकर जप करते हैं, दाहिना हाथ में जपमाला, बाया हाथ में मोबाइल में भी बात करते हैं। हरे कृष्णा राम राम, प्रभु जी की कैसे है आप? राम राम राम, हरे हरे राम राम। अच्छा है ना? राम राम राम। कैसे है आप? राम राम राम। बहुत दिन तो देखा नहीं, राम राम राम। मन नहीं है जपों में। कभी कभी हम लोग जपा करते करते दोनों बातचीत भी करते हैं। प्रभु जी ठीक है ना, आप कैसे हो? राम 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 राम। हाथ में जपा चलता है, मुंह में बातचीत भी चलता है। कभी कभी माता लोग को मैंने देखा है हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में भी रसोई भी करते हैं। कभी कभी बच्चा को लेकर गोद पे स्तन पिलाते हैं और आदत करते हैं। हरि नाम में आदत नहीं है और सब में आदत है। इसलिए भागवतम आए। भागवतम में 1343, कृष्ण सदा में उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशा में स पुराण अर्क अधुना उदित। तो भागवतम में सुते हुए समय ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ये धरती छोड़ के भगवत धाम गए, उन्होंने पार्षद, धाम, धर्म सब कुछ लेकर गए। तो जाने के समय उद्धव ने भगवान को पूछे, उद्धव ने कहा, प्रभु आप ये जगत छोड़ के अपना धाम लौटते हैं, लेकिन भक्त लोग किसके आधार करके जिएंगे? तो भगवान ने उद्धव के सामने बैठ के पूरा भागवत कथा सुना है प्रवास तीर्थ में। अंतिम में अंततः भगवान ने कहा, देखो उद्धव, तुम्हारे सामने जो भागवत शास्त्र मैंने दिया तुमको, वो भागवत शास्त्र में हम इस भागवत शास्त्र सागर में मैं आपको मेल्ट कर दूंगा। मेल्ट, भागवत शास्त्र में भगवान एकदम मेल्ट है। जैसे आइसक्रीम कभी कभी गर्मी में मेल्ट हो जाता है ना, भगवान एकदम मेल्ट होकर वो किताब में एकदम पूरा एकदम छिप गए। भगवान ने कहा, देखो उद्धव, जब तुमने भागवत पढ़ा चालू करेंगे ना, हर पेज में, भागवतम के हर पेज में मेरी जैसे स्वरूप है ना, ऐसे ही तुमको दर्शन मिलेगा। ये भागवत पाठक को ऐसे भाग्यवान होना चाहिए। जो हम लोग भागवत पढ़ते हैं ना, भागवत पढ़ने का सार है भागवतम के हर पेज में, हर पृष्ठ में भगवान को दर्शन कर सके। ये इसी स्तर पर आना चाहिए, भगवान ने कहा। तो कलो नष्ट दृशा में से,
कलियुग में सब लोगों का आंख नष्ट हो चुका है। यद्यपि सब लोग चश्मा और ग्लास पहनते नहीं, लेकिन भागवत ने कहा सबका आंख नष्ट है। कैसे? ना हम लोग का तो आंख है, चश्मा पहनते नहीं, लेकिन ये आंख केवल बुरा चीज देखते हैं, केवल बुरा चीज। किस भक्त का कोई गलत है, कभी गलत बात बोलते हैं, सब गलत चीज देखने को मिलता है। इसलिए बोलते हैं ये आंख सबका नष्ट हो गया। सचमुच नष्ट है, क्योंकि असली चीज जो अच्छा होता है वो ये आंख से पकड़ नहीं सकते। ये देखिए, हम लोग ये भक्ति जीवन में आने के पहले हम लोग बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते थे, हर रोज पढ़ते थे। कोई व्यक्ति तो एक पेपर नहीं, कम से कम 2-3 पेपर एकदम टॉप टू बॉटम। कभी किसी को कहिए कि आप थोड़ा गीता पढ़ लीजिए, कहेंगे समय नहीं है, लेकिन पेपर तो जरूर पढ़ेगा। अगर आंख में देखने भी नहीं आता है तो चश्मा पहन के पढ़ते हैं, चश्मा के ऊपर से, चश्मा के नीचे से। कभी कभी हमारा बांग्ला में हम देखते हैं, बस ट्रेन में लोग जाते हैं सर्विस में नौकरी करने के लिए। कभी कभी बस ट्रेन में इतना गैदरिंग होता है कि सीट तो मिलता नहीं, सीट उपलब्ध नहीं है। इवन खड़ा होके जाना भी मुश्किल है, तब भी लोग जाते हैं क्योंकि ऑफिस पकड़ना है। और उसमें भी इतना भीड़ में भी वो पेपर पढ़ते हैं लोग। वो पेपर में क्या चीज है बोलिए, क्या लिखा है पेपर में, क्या न्यूज है पेपर में? अगर मान लीजिए अवतारी देश में आज बहुत भक्त लोग इकट्ठा हुए जूम में, मायापुर से भक्त विजय भागवत महाराज भागवतम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है भागवत कथा। आपको मन में क्या आता है कि कल वो जो अबू धाबी व दुबई में गाल्फ पेपर है, न्यूज पेपर, उसमें आएगा क्या? नहीं, वो मैसेज आएगा नहीं। अगर कुछ गलती हो जाए वो आएगा, अगर कुछ अच्छा चीज मैसेज जगत को देना है तो बहुत पैसा लगता है छापने के लिए। लेकिन बुरा चीज ऐसे ही छापते हैं वो लोग, मीडिया लोग, क्योंकि मीडिया लोग जानते हैं ये न्यूज ही लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग का आंख पूरा नष्ट है। हम लोग का आंखों को दिशा दिखाने के लिए भागवत अवतीर्ण हुए। पद्म पुराण में एक कथा है, हरे कृष्णा बोलो। আমি আবুধাবিতে ক্লাস দিচ্ছি, ক্লাসে ঢুকতে পারেন যদি ঢুকেন। তো पद्म पुराण में एक श्लोक है, ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप। भागवत के एक एक स्कंध भगवान के एक एक अंग की तुलना की गई। ये चर्चा हमने किए थे अबू धाबी में एक बार। पादो यदिओ प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्जो कथित जदुर। भागवतम में 12 स्कंद है, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद। 2 स्कंद भगवान के पादों, भगवान के 2 चरण है। तृतीय तुर्जो कथित जत उरु, तृतीय स्कंद और चौथा, तीसरा और चौथा
ये 2 स्कंद भगवान के उरु और थाई बोलते हैं, थाई। नाभि सता पंचम एवं षष्ठ, नाभि नेबल भगवान के लोटस नेबल नाभि पंचम 5वां स्कंद है। भुजांतर, भुजा माने हाथ, दो भुजा, दो भुजाओं के अंतर जो छाती होते हैं, वक्षस्थल, वक्षस्थल ये 6वां स्कंद है, 6 कैंटो। दो भुजाओं 7म और 8म स्कंद। कंठस्थ राजन 9व जदियो, भगवान के गले कंठदेश ये 9व स्कंद है, 9वां स्कंद। मुखार बिंदम 10म प्रफुल्लम, भगवान के जो हास्योज्जल मुखमंडल, मुस्कुराते भी है भगवान के मुखमंडल, ये 10म स्कंद है। भगवान हर समय हंसते हैं ना, भगवान के मुंह में हंसी विराजमान है। हम लोग का मुंह में हंसी आता नहीं, हम लोग हर समय सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अरे कितना बजे क्लास खत्म होगा, प्रसाद खाना है ना, सोना है। न जाने महाराज तो 15 मिनट लेट में आए, फिर कितना लेट में छोड़ेंगे, क्या जाने। मेरे नौकरी में जाना है, ये करना है, वो करना है, सब। लेकिन भगवान के मुंह में हर समय हंसी विराजमान। बचपन का जो पिक्चर देखिए, चित्र देखिए, जुबा में, गृहस्थी में, इवनिंग कुरुक्षेत्र रणांगण में भी जो पिक्चर है, कितना सुंदर हंसी है। भीष्मदेव ने कितना सुंदर स्तुति किए। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरव वरम दधन दधान। भीष्मदेव ने कहा, प्रभु कुरुक्षेत्र रणांगण में आपका जो हंसी था ना, वो हंसी से सब योद्धा मर चुके हैं। जैसे कभी कभी लड़की लोग इतना सौंदर्य होता है, कितना युवा लोग को मार डालते हैं प्रेम से, काम से। श्री भगवान को ऐसे स्तुति में गुणगान किए भीष्मदेव ने। भगवान के मुंह में, चेहरा में हर समय हंसी फैलता है, हंसी। बचपन में देखिए, कभी कभी हमारा बच्चा लोग कभी कभी गाल में हाथ देकर बैठते हैं, मम्मी कल एग्जाम है, क्या करो। भगवान के ये विचार भी नहीं था, ये सोचने का बात नहीं था, क्योंकि भगवान बचपन से पढ़े ही नहीं, सिर्फ खेल कूद में बिताए। हमारा गांव में कभी कभी बोलते हैं, अरे तुम पढ़ते नहीं क्या, गोचारण भूमि में जाकर गाय चराते हुए बिताओगे क्या। तो भगवान ने गाय चराए। गाय चराना तो एक बहाना था, मेन था खेल कूद करना। हम लोग भी बचपन में बहुत खेल कूद किए, बहुत। सुबह उठते ही खेल कूद, 1 घंटा पढ़ लेते, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते थे, सिर्फ 2 घंटा क्लास, फिर टिफिन, फिर 1 घंटा क्लास, घर लौटो। घर में आकर स्कूल बैग फेंक के थोड़ा टिफिन खा के चलो खेती में खेल कूद करना। हर दिन हम लोग खेल कूद किए। लेकिन आज अभी तो से मौका है नहीं बच्चा लोगों को। तो बचपन में भगवान खेल कूद करके बिताए, इसलिए हम लोग दामोदर स्टॉकहोम में हम लोग गाते हैं, नमामि शरणम सत चित आनंद रूप। भगवान हर समय आनंद के रूप में। फिर भगवान पढ़े नहीं क्यों बचपन में, ना भगवान के पीछे उनकी पिता माता नहीं थे।
पिता माता तो हर समय पीछे पढ़ते हैं ना, पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन भगवान के पिता माता तो जेल में थे। फिर भगवान 11.5 साल बिताए वृंदावन में, फिर गए मथुरा में, कंस को वध करने के बाद पिता माता को उद्धार किए। और जैसे ही पिता माता को उद्धार किए, ऐसे ही पिता माता पीछे पड़ गए। पढ़ना है ना, क्या मूर्ख बनोगे क्या? आगे मूर्ख रहो तो कोई आदमी लड़की नहीं देंगे तुमको, और लड़की नहीं देंगे क्या? कितना लड़की पीछे पड़ते हैं भगवान कृष्ण के पीछे। तो पिता माता ने दोनों को, कृष्ण बलराम को, हॉस्टल बोर्डिंग में दे दी, पूरा कॉलेज में एडमिशन कराए और बोर्डिंग में दे दी। तो कितना साल पढ़े भगवान ने। हम लोग जैसे 1 kg 2 kg मतलब KG 1 KG 2 1 2 3 4 ऐसे करके डिग्री करते हैं। जैसे HS पास, उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PhD ऐसे करते हैं। भगवान ने सिर्फ 64 दिन 64 डेज पढ़ाई की। और दिन में गुरु जी के सामने पढ़ाई करते हैं, रात में प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क। फिर नेक्स्ट डे जाकर गुरु जी को बोल देते हैं, ऐसे हम सीखे हैं कल रात में। तो फिर नया कोई शिक्षा। ऐसे भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या लाभ की। 64 मतलब 100 ऐसे कैलकुलेशन है, ये है वैदिक कैलकुलेशन। पूरा शिक्षा लाभ किए 64 दिन में। पूरा क्या किया सीखे? भगवान साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सेक्शन कंप्लीट किए। उसके बाद गीत कैसे गाना है वो सीखे। जितना सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो सब सीख चुके हैं। लैंग्विस्टिक भिन्न भाषा, पशु पक्षी की भाषा, ये सब सीखे। इंटीरियर डिजाइनर, ये सब लिखा है भागवतम में। एक्सटर्नल डिजाइनर, फिर फेस्टिवल में कैसे डेकोरेशन करना है, कैसे क्या बोलते हैं फाउंटेन, वाटर फाउंटेन, वो भी सीखे हैं। और लिखा है फेशियल करना है, लड़की लोग को सजावट करना, क्योंकि भगवान जानते हैं ना बाद में बहुत शादी करेंगे। तो पढ़ाई कंप्लीट किए। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, हम लोग जो जेंट्स लोग होता है, जो स्टूडेंट, तो जॉब ढूंढते हैं ना। जॉब भी भगवान को मिला कैंपस से। क्या जॉब मिला भगवान को ना? पांडवों को घर में ड्राइवरी नौकरी मिला। भगवान का नाम पड़ा पार्थ सारथी। और उसी ड्राइवरी नौकरी का दौरमा से पैसा से भगवान 16,108 शादी की। और 16,108 शादी वो तो रजिस्ट्री शादी किए। ऐसे तो हाउस थे बहुत। तो हर पत्नी से 10-10 लड़का, एक लड़की। इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा संसार। तो हमारा इंडिया में तो कानून है, हम दो हमारा एक। शायद एक कानून उस समय नहीं था,
भगवान है ना, कानून के बाहर है। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि एक कानून, भारत का जो कानून है, ये कानून केवल हिंदू लोग मानते हैं। ये बांग्लादेश में मानना चालू किया। हम दोनों स्वामी स्त्री पति पत्नी और एक बच्चा चाहिए। लेकिन और अलग धर्मों में जैसे मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, वो लोग एक कानून में है नहीं। मुस्लिम लोग का देखिए कितने बाल बच्चा है, बहुत है। हमारा श्री श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कभी कभी मजाक से बोलते हैं, देखो इसलिए मुस्लिम लोगों का जो भगवान है ना, अल्लाह, उन लोग के ऊपर बहुत खुश है। लेकिन हम लोग भगवान के विरोध आचरण करते हैं। हमको जो चाहिए, हम एक संतान पैदा करेंगे, दूसरा आएगा तो मार देंगे, बस कैसे कुछ करेंगे। तो भगवान इसलिए हम लोग के ऊपर नाराज है, नाराज। अरे भगवान ने सिखाए 10-11 लड़का लड़की लो, अरे ज्यादा से ज्यादा तो संतान होना चाहिए। अरे एक संतान तो आपका साथ रहेंगे, तो यार बाकी संतान आप मंदिर में भेज दीजिए। अगर सब लोग एक एक संतान लेंगे तो मंदिर कैसे चलेगा? वॉलंटरी चाहिए ना कुछ। तो भगवान इतना बड़ा संसार होते हुए भी भगवान को कोई पिक्चर, कोई मूर्ति ऐसे न देख चुके क्या? हम भगवान बहुत चिंता में है। इतना बाल बच्चा कहाँ पढ़ाओ, ऐसे नहीं, कहाँ से एग्जाम फी, परेशानी में हो जाते हैं लोग। लेकिन भगवान का कोई पिक्चर में आप देख नहीं सकेंगे क्या? भगवान बहुत निरानंद है। तो इसलिए भगवान आनंदमय स्वरूप। इसलिए हमारा गुरु महाराज शिष्य जयप्रताप महाराज, उन्होंने एक किताब लिखे, छोटा किताब, आनंदेर सीमा नहीं, निरानंद दूरे जाबे। आप भी अगर भगवान से जुड़ जाएंगे तो आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। तो एक बार याद दिलाऊंगा, प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद भगवान के 2 चरण, तीसरा चौथा भगवान के 2 उरु थाई, पांचवा भगवान के नाभि, वक्षस्थल, छठवा स्कंद, और सप्तम अष्टम 2 भुजाओं, नवम भगवान के कंठदेश, और प्रफुल्लित मुखमंडल, हास्योज्जल मुखमंडल, ये 10म स्कंद है। एकादश ललाट पट्यम, एकादश स्कंध भगवान के फोरहेड, ललाट, संस्कृत में बोलते हैं कपोल, हमारा बांग्ला में बोलते हैं कपाल, कपाल। ये कपाल के गोपाल, गोपाल, कपाल। और द्वादश स्कंद शिरोपितु द्वादश एवं भाती, भगवान के सिर, सिर में जो चांचर, केस, घुंघराले बाल, मुकुट, मयूर पंख, पगड़ी, ये सब द्वादश स्कंद है। ये भगवान के स्वरूप है पूरा। ये लास्ट 2 लाइन में वंदना के स्वरूप में कहा, तम आदि देवम करुणा निधानम। जैसे हम लोग श्रृंगार आरती, दर्शन आरती में हम लोग गीत गाते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि, आदि पुरुष। भागवत में ऐसे
तम आदिदेवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतार। भगवान आदिदेव भागवतम और करुणा के निधान है, बहुत करुणामय रूप है। और भागवतम के बॉडी कलर कैसे होता है ना, भगवान कृष्ण के कलर ब्लैकिश, श्याम सुंदर, भगवान रामचंद्र दूरबा दौलत श्याम, दूरबा घास के जैसे कलर है। चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार है, से पूरा गोल्डन फॉर्म है। तो भागवतम के फॉर्म कैसा है न, तमाल वर्ण, तमाल एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और वृंदावन में प्रसिद्ध है। तमाल और कदम, दो पेड़ बहुत प्रसिद्ध वृंदावन में। तमाल राधा रानी के प्रिय है, क्योंकि तमाल के कलर कृष्ण जैसे काला है, काला ब्लैकिश। जब राधा रानी कृष्ण के भाव में आ जाते हैं ना, कृष्ण दर्शन के विरह में, तब कृष्ण के अगर सामने न देखते हुए तमाल वृक्ष को आलिंगन करते हैं, और तमाल वृक्ष के आलिंगन करके कृष्ण आलिंगन के सुख लेती है। ऐसे कृष्ण भी कभी कभी राधा रानी के विरह में कदम वृक्ष जैसे राधा रानी के बॉडी कलर एकदम व्हाइट, और कदम वृक्ष में एक छोटा फूल होता है जो देखने में, जो माता लोग सोने के रिंग नाक में डालते हैं ना, वो जैसे लगते, एकदम एकदम सोना जैसे। तो कृष्ण के बहुत प्रिय है ये कदम वृक्ष। जब राधा रानी के विरह में आते हैं, और कदम वृक्ष को आलिंगन करके राधा सुख लेते थे भगवान कृष्ण। तैसे भगवान के कलर तमाल, ये भागवतम के कलर ऐसे है। तमाल वर्णम सुहित अवतारम। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद भगवान के 6 अवतार के बारे में चर्चा किए। भगवान के पहला अवतार पुरुष अवतार, उसके बाद गुणावतार, जुगावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनंतर अवतार। लेकिन भागवतम ये संपूर्ण अलग अवतार है, यूनिक अवतार। क्या अवतार? सुहित अवतार, वेल विशर, सुहित अवतार। तो कैसे सुहित होता है? भागवतम आके जगत में कैसे सुहित करते हैं, जगत को हित कैसे करते हैं। लास्ट लाइन, बॉटम लाइन, अपार संसार समुद्र सेतु। हम लोग जो संसार में है ना, ये क्या संसार? दुख की संसार, दुख की संसार, दुखमय संसार। और ये समुद्र है। आप लोग तो अबू धाबी में है, समुद्र के ऊपर में। केवल आप लोग नहीं, भगवान ने कहा हम लोग भी समुद्र में है। किस समुद्र में? ना ये संसार समुद्र, दुख समुद्र, दुख। ये जगत केवल दुख ही दुख और दुख है, सुख बिल्कुल नहीं है। कभी दुख की थोड़ा कमती जैसे होगा, वो सुख की भांति लगते हैं, लेकिन सुख नहीं है। भगवान ये जगत की नाम डाला है। जैसे आप लोगों का कोई सारी भक्तों का शायद आबू धाबी में दुकान भी होगा। कभी कभी हम लोग हमारा गांव में दुकान बांधते हैं। हम लोग दुकान करने के बाद दुकान के ऊपर नाम डालते हैं हम लोग, नाम।
गोविंद भोजनालय, उमा वस्त्रालय, दुर्गा वासनालय, वस्त्रालय, भोजनालय, वासनालय। तो औषधालय, तो भोजनालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। वासनालय में जाएंगे तो वासन कोसन मिलेगा, बर्तन मिलेगा। और वस्त्रालय में जाएंगे तो वस्त्र मिलेगा, है ना। और औषधालय में जाएंगे तो औषध मिलेगा। भगवान भी ये जगत बना के जगत के नाम डाले उन्होंने। भगवत गीता 8वें अध्याय में देखिए, मैंने ये जगत को नाम डाला है दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत की नाम है दुखालयम। तो औषधालय में औषध मिलता है, भोजनालय में भोजन, वस्त्रालय में वस्त्र, दुखालय में दुख ही मिलेगा। ये तो सीधा बात है। हम लोग चाहते हैं कि सुख मिलो, इसलिए हम लोग मकान बनते हैं, मकान के ऊपर हम लोग डालते हैं शांति निर्णय, शांति का विलास है, शांति का भवन है, शांति शांति शांति, कोई सारी नाम डालते हैं हम। लेकिन घर में जाके देखिए ना, वो कारगिल का झगड़ा हो रहा है। शांति क्या है? किसी घर में शांति नहीं है, क्योंकि ये घर का नाम, ये दुनिया का नाम है दुखालयम। इसलिए भगवान ये दुखमय जगत से उद्धार होने के लिए 3 उपाय बनाए। 3 उपाय। पहला उपाय है भगवत गीता। भगवत गीता, अब देखिए 4था अध्याय में 434 श्लोक, भाव देखिए 36 नॉट 34, 36। भगवान ने कहा, ओपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्वम ज्ञानम प्लवे नैव वृजनिंग संतिरस। अर्जुन, तुमने ये गीता की नौका, गीता की जो नाव मैंने बनाया, वो गीता रूपी नाव में आश्रय लेकर ये जगत से तुम मुक्त हो जाओ। गीता एक नाव की तरह है, बोट। गीता है बोट। तो गीता से हायर शास्त्र है भागवतम। गीता है बोट, भागवतम क्या है ना? अपार संसार समुद्र सेतु। भागवतम है ब्रिज। इस जगत से गोलोक वृंदावन तक एक ब्रिज भगवान ने बनाए, जैसे भागवतम। ये भागवतम को आधार करके आप भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो तीसरा उपाय चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत क्या है? ए मौन हरिनाम करो सार, ए भव सागर हवे बालीचर, हाटिया होई भी पार। अरे भक्त लोग, सिर्फ हरिनाम करो, हरिनाम करो, हरिनाम करो। हरिनाम करते करते ये भाव सागर सूख जाएगा, बालूचर बन जाएगा। आप लोग नाचते नाचते भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो 3 उपाय है, बोट, ब्रिज और बालूचर। 3 शास्त्र प्रभुपाद ने दिए। तो गीता में क्या है? गीता में 700 श्लोक है, 700 वर्सेस। गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसका मतलब है, आप धर्म करने चाहते हो तो गीता पढ़ो। हर संप्रदाय में धर्म शास्त्र है। जैसे इस्लाम लोग, वो कुरान पढ़ते हैं। कोई इस्लाम लोग का पूछिए, सर आपने कुरान पढ़ा है क्या?
वो यस बोलेंगे। क्यों? ना उनकी साहस नहीं होगा कि ना बोलना। क्यों? ना जो कुरान पढ़ते नहीं वो मुस्लिम नहीं, काफिर है। जो क्रिश्चियन लोग हो तो बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदू लोग गीता पढ़ते नहीं। धर्म चर्चा बहुत करते हैं। ये मुस्लिम लोग का क्या धर्म चर्चा? एक महीना फास्टिंग करके बिताते हैं बस। क्रिश्चियन को क्या उत्सव है देखिए, सिर्फ मतलब साल जो खत्म होता है ना 25 दिसंबर से 1 जनवरी, इतना ही दिन वो लोग आनंद करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कितना पर्व अनुष्ठान होता है, कितना। तो तब भी बहुत लोग नाचते हैं, क्योंकि धर्म करते हैं लेकिन धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं होता है। इसलिए गीता के पहला श्लोक है धर्म सत्य। अगर धर्म करना है तो गीता पढ़ो। तो गीता में क्या जानकारी मिलेगा हम लोग? ना गीता में हम लोग को जानकारी मिलेगा कृष्ण ही भगवान है। अहम सर्वस्व भव मत सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्व, भगवान ही सब कुछ है। तो गीता का अंतिम उपदेश क्या है? न सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं। सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो भागवतम शुरुआत होता है जहां पर गीता अंतिम, भागवत वहां से ही शुरुआत हुआ। भागवतम के पहले श्लोक किसके मालूम है क्या? किसी को याद है भागवतम के पहला श्लोक? क्या श्लोक है भागवतम के पहले? भागवतम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ। क्या श्लोक है भागवतम? बोलिए अमित सावंत प्रभु। यस। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। सुनो महाराज, मेरे को श्लोक मालूम नहीं, लेकिन मनोबात थोड़ा थोड़ा मालूम है ना। श्लोक तो सबके याद है, सबके याद है। भागवतम के पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही भागवत खुल के देखिए, पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्लोक याद है कि नहीं सामंत प्रभु जी? याद है कि नहीं? याद है याद। हम लोग बोलते हैं ये श्लोक है एडमिशन टेस्ट। जैसे बच्चा लोग को स्कूल में जब एडमिशन कराते हैं ना, एडमिशन टेस्ट होता है। तो भागवतम जो पढ़ने चालू करेंगे उनके लिए ये एडमिशन टेस्ट श्लोक। क्या ना? ओम नमो भगवते वासुदेव। तुम गीता पढ़ के भगवान वासुदेव को भगवान बोल के स्वीकार किया कि नहीं? बोला हाँ, ठीक है, तुम भागवत पढ़ो। तो भागवतम में 18,000 श्लोक। तो गीता में हम लोग को जानकारी मिला कृष्ण भगवान। भागवतम में क्या ज्ञान है ना? वही कृष्ण 3 स्वरूप में है, मथुरा कृष्ण, द्वारका कृष्ण और ब्रज की कृष्ण, वृंदावन की कृष्ण। तो 3 कृष्ण स्वरूप में कौन कृष्ण रसराज रसश्रेष्ठ है? वृंदावन कृष्ण रसराज रसश्रेष्ठ है। आराध्य भगवान ब्रज सततम है। हम लोग का आराध्य भगवान ब्रज की कृष्ण। तो भागवत में ये शिक्षा है ब्रजराज कृष्ण रसराज है, सर्वश्रेष्ठ है, लीलाधारी। और भागवतम के आखिरी श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम जस सर्व पाप प्रणाशनम। सुत गोस्वामी ने कहा मुनियों, सौनक आदि मुनियों, 18,000 श्लोक सुनाया आप लोगों को। इसका सार क्या है मालूम है? हरि नाम संकीर्तन करना। तुम लोग जमा के हरि नाम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इस बार चैतन्य चरितमृत उसी से ही चालू हुआ। कृष्णदास कविराज में उन्होंने फर्स्ट जो पहला श्लोक है उन्होंने लिखे, वंदे गुरु निशा भक्त निशा ईशम अवतार कान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संघ को। हम ये हरिनाम जिसकी कृपा से मिला है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास, अद्वैत आचार्य गदाधर, इन सब लोगों को चरण में प्रणिपात करके हम चैतन्य चरितमृत लिखन चालू करेंगे। ये कनेक्शन है तीन ग्रंथ का। और चैतन्य चरितमृत में क्या शिक्षा मिलेगा हम लोग? गीता में कृष्ण भगवान, भागवतम में कौन सी कृष्ण? रसराज वृंदावन कृष्ण। और चैतन्य चरितमृत में क्या शिक्षा मिलेगा? चैतन्य चरितमृत का शिक्षा है किस भाव से भगवान कृष्ण को पूजा करना है। 5 मुख्य भाव है, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, मधुर। मधुर भाव, गोपी भाव, ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए जगत में। ये 3 शास्त्र है। भागवत में ब्रिज, सेतु, इसलिए श्लोक की आखिरी शब्द में कहा, भजा महे भागवत स्वरूप। हम इसी भागवतम को नमन करते हो, प्रणाम करते हो। तो ये भागवतम के पूरा स्वरूप साक्षात कृष्ण मूर्ति विग्रह। श्रीमद जयप्रताप महाराज ने कहा, उन्होंने कहा चैतन्य भागवत से एक श्लोक निर्णय करके उन्होंने कहा, भागवत थाकोए जार घरे कोनो अमंगल नहीं तथा करे। जिसके घर में भागवत शास्त्र होगा किसी प्रकार अमंगल नहीं रहेगा। जयप्रताप गुरु महाराज ने कहा, अरे अमंगल के बात तो छोड़ो, कभी कभी हम लोग का मन में आशा और इच्छा पोषण होता है। हम लोग का जब रिटायरमेंट आएगा ना, बुढ़ापा आ जाएगा, हम इधर से जितना पैसा कमाया वो पैसा लेकर वृंदावन में और मायापुर में एक मकान खरीद करके, फ्लैट खरीद करके, मकान बना के रह के भजन करो। तो महाराज ने कहा ये मौका सब लोग को नहीं होता है। हम लोग का आशा होता है, लेकिन वृंदावन में वास करना, नवद्वीप में वास करना, ये सबके भाग्यशाली नहीं होता है, सबके भाग्य स्वरूप में नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के घर में भागवत होगा, भागवत ग्रंथ विराजमान हुआ, साक्षात भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान होंगे। और जब कृष्ण भगवान आएंगे घर में, कृष्ण के साथ जितना भी प्यारी भक्त है, ध्रुव, प्रहलाद, पंच पांडव, नारद जी, सब वहां ही विराजमान होता है। और हर दिन सभी देवी देवा, कभी कभी गृहस्थ लोग देवी देवा को पूजा करते, बंगाल के लोग काली दुर्गा को पूजा करते, और मराठी लोग गणपति भगवान की पूजा करते। एक एक एरिया में एक एक देवी देवा का पूजा करते। तो स्कंद पुराण में कहा, लेकिन जिसके घर पर भागवत विराजमान होंगे, हर दिन देवी देवा लोग आएंगे भगवान को पूजा करने के लिए। और समस्त पवित्र नद नदी, रिवर, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी,
जितना गोदावरी, जितना सारी पवित्र नदियां है, सब भगवान के चरण में आकर आश्रय लेते। मतलब सुषमा जयपताका गुरु महाराज ने कहा, उसके घर एक तीर्थ बन जाता है। तीर्थ, हमारी तीर्थ में वास करने के सौभाग्य नहीं होता है, लेकिन घर में जब भागवत आता है ना, घर तीर्थ बन जाता है, तीर्थ। तो इस्कॉन मैनेजमेंट, उन लोग का एक प्रयास है। प्रभुपाद ने कहा, एवरी रेस्पेक्टेबल पर्सन हैज ए, ना, प्रभुपाद ने कहा, आई वांट दैट every respectable person has a full set of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in his home. प्रभुपाद ने कहा, हमारी सोसाइटी में सब सदस्य के प्रति मेरा ये अनुरोध है, दिस इज माय रिक्वेस्ट, आई वांट, ये मेरा अनुरोध है, हर घर घर में भागवतम की प्रतिष्ठा करना। इसलिए हमारा इस्कॉन, जीबीसी, गुरुजनों, सब लोगों के प्रयास है, सब घर में भागवतम को प्रतिष्ठा करना और घर को तीर्थ बनाना। ये लास्ट 3-4 साल चालू हुआ भाद्र पूर्णिमा फेस्टिवल। तो सामने 20 तारीख को फेस्टिवल बनेगा। तो तीन स्टेज, मतलब 3 स्तरीय का भक्त के नाम पर विशेष पूजा होगा। कोई भक्त लोग भागवत खरीद करेंगे घर के लिए, घर में भागवतम है नहीं। किस भक्त लोग भागवत दान करेंगे, गुरु जी को दान करेंगे, ब्रह्मचारी को दान करेंगे, कभी कभी रिलेटिव्स, पड़ोसी लोग को भी दान करेंगे। तो कोई खरीद करेंगे, कोई दान करेंगे। जैसे हम महाराज हैं, तो मेरा खरीद करना की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा घर ही नहीं है, तो खरीद करके भागवत कहाँ रखूं। और दान करने में भी पैसा नहीं है। तो हमारे पास एक मौका है प्रचार करना, सब लोग को प्रोत्साहन देना, एनकरेज करना कि भागवतम घर में रखो, भागवत प्रचार करो। मतलब भागवत प्रीचर, डोनर और बायर, ये तीनों व्यक्ति के नाम पे स्पेशल पूजा होगा भाद्र पूर्णिमा में, भाद्र पूर्णिमा के दिन में। इंटरनेशनली सब लोगों के लेकर नैमिषारण्य नक्षत्र में पूजा होगा। बहुत बड़ा एक हवन होगा, यज्ञ होगा। और हम लोग मायापुर में जो प्रचार करते हैं ना, हम लोग का पूरा नाम तो भेजेंगे नैमिषारण्य में, फिर मायापुर में भी पूजा करेंगे। मायापुर में विशाल फेस्टिवल बनेगा भाद्र पूर्णिमा। तो आप सब लोग भाग ले लीजिए। कैसे भी आपके घर में है नहीं तो आप खरीद कीजिए, पैसा है तो किसी को दान कीजिए, नहीं तो भागवत प्रचार करने में आप जुड़िए। मंदिर से भागवत उठाए, लेकर जाते जाते किसी के घर में देकर पूजा करके प्रतिष्ठा करके उनसे पैसा लेकर आइए। बस 3 में 1 करना चाहिए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा जस्व श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय। किसी भी प्रकार से भागवतम की सेवा कीजिए। भागवतम की सेवा मतलब घर में रखिए, पूजा कीजिए, प्रणाम कीजिए, पढ़िए, सुनिए, सुनाइए, किसी भी सेवा कीजिए। जैसे भागवत सेवा में आप जुड़ते हैं ना, उसी समय
भगवान आपको चित्त में आकर पूरा प्रकाशमान हो जाते हैं। हरि चित्तम समाश्रय, हरि चित्त में आधारित हो जाते हैं। इसलिए इस्कॉन में जुड़े हुए सब भक्त लोग प्रयास कीजिए। 125 साल प्रभुपाद की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, जन्म वार्षिकी, कोई भक्त लोग ये भी प्लेज किए, प्रतिज्ञा किए 125 भागवतम सेट प्रचार करेंगे। कोई यात्रा भी ऐसे प्लेज किए, कम से कम 125 ना हो 100 नहीं तो 51, कम से कम 21, 11, कम से कम 1 भागवतम तो प्रचार करना चाहिए प्रभुपाद के खुशी के लिए। प्रभुपाद ने कहा सब प्रचार ठीक है, मंदिर निर्माण करना भी ठीक है, मैनेजमेंट करना भी ठीक है, लेकिन if you really want to please me, then distribute my books. सचमुच खुशी करना है तो मेरा भागवतम प्रचार करो। तो यही भागवतम के बारे में बहुत चर्चा है, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, और श्रील सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपना जीवन में भागवतम के जो उपकार वो भी बताए 5 श्लोक में, स्तुति में। अगर कुछ दिन मौका मिले तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। सनातन गोस्वामी भागवतम के कैसे सम्मान किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भी समय हो चुका है। तो भागवतम के कैसे भी सेवा कीजिए। कम से कम भाद्र पूर्णिमा में एक श्लोक है भागवतम में 12:13 इस श्लोक सुत गोस्वामी ने कहा, पौष्टपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति जो भागवतम सजाति परम पदम। भाद्र पूर्णिमा के दिन में स्वर्ण सिंहासन में भागवतम रखकर किसी को अगर दान करेंगे वो भगवत धाम जाएगा। सचमुच ये भी चर्चा है। तो कैसे भी भागवतम की सेवा कीजिए। भागवतम है जगत से उद्धार करने के लिए ब्रिज सेतु। गंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगजीवनाच्युत प्रभु, हरे कृष्णा। या Any questions? या करेक्ट। किसी का कोई प्रश्न है? सुरेश्वर सुरेश्वर जनार्दन प्रभु का प्रश्न है। प्रश्न तो ये होना चाहिए, महाराज अब आशीर्वाद कीजिए, हम ज्यादा से ज्यादा भागवत प्रचार करो। भागवत कैसे प्रचार करेंगे, इसी ऐसे ही प्रश्न होना चाहिए ना। ओके सुरेश्वर जनार्दन प्रभु। राधा हरे कृष्णा महाराज का प्रणाम। महाराज एक डिवोटी का प्रश्न है कि हम घर में भागवत को कैसे रखें, क्यों हमारा घर में मांस मछली ये सब खाते हैं, तो और क्या रखने का, किस तरह रखने का है और रखना चाहिए क्या? ये सब खाते हैं पीते हैं तो पढ़ने वाला भी नहीं है, ऐसा भी हम जब प्रचार करने जाता है ऐसा भी होता है कि हमारा घर में तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। अरे पढ़ने वाला तो है नहीं, अभी कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना। आप इधर से जाकर जब रिटायरमेंट बनेंगे, भागवतम तो अंतिम के समय कम में आएगा। अभी तो हम जवान है, इनकम करेंगे, इधर इधर दौड़ते हैं, बहुत बिजी पर्सन है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हम लोग लेजी पर्सन बन जाएंगे। तो तब क्या करेंगे? हाथ में कोई काम नहीं, तब पढ़ेंगे ना। तब अगर पढ़ने चाहेंगे तो हाथ में पैसा नहीं खरीद करने के। तो इसलिए श्री श्रीमद भक्ति चारू महाराज ने कभी कभी हम लोग को ऐसे प्रोत्साहन देते कि देखो कौन पढ़ता है कौन पढ़ता नहीं,
ये विचार तुम लोग मत करो। प्रभुपाद की किताब है टाइम, वो टाइम पर ब्लास्ट होगा। किसी घर में अनुकूल परिवेश है, उसी घर में भागवतम की जो कृपा जल्दी प्रकाशित भक्त बन जाएगी। किसी घर में मांस मछली मदिरा पीते हैं, उसी घर में इतना जल्दी ब्लास्ट नहीं होगा। बाद में उन्होंने हम लोग को बोलते थे, देखो तुम लोग का काम है कि ग्रंथ वितरण करना, घर घर में भागवतम की प्रतिष्ठा करना, ठीक है। तो भागवतम अगर इस जन्म में कोई पढ़ते नहीं, उनका नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट 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 कोई एक जनरेशन ये भागवत पढ़ के लाभ उठाएगा, और कितना पीढ़ी, कितना जनरेशन उद्धार करेंगे। तुम लोग का भी जो हार्ड वर्क, परिश्रम है ना, वो भी तुम लोग को बिताएगा। तो इसलिए भागवतम घर घर में प्रतिष्ठा होना चाहिए। कोई पढ़े ना पढ़े, कम से घर घर में रहेंगे तो घर मंगलमय होगा, रखना ही होगा घर में। थैंक यू महाराज। महाराज मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। महाराज जैसे कि हम बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास भी हमको मिलता है कि हमें नम्र होकर उन अगर नहीं वो लेना नहीं चाहते फिर भी हम नम्र होकर उनसे प्रचार करना चाहिए, ऐसा मूड होना चाहिए, नम्र भाव विनम्र होना चाहिए, इस तरह का। लेकिन एक्चुअली वो जो हम किसी को ग्रंथ का बारे में, भागवतम का बारे में बताएंगे, जो हमारा मूड एक्चुअली रियली हमारा मूड कैसा होना चाहिए और कैसा भाव होना चाहिए उनको हम कि ताकि मैं उनको दिल को जीत सकूं। भाव कैसे होना चाहिए प्रचारक का, वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़िए। वो ग्रंथ में प्रभुपाद ने लिखे प्रचारक का जो भक्त लोग प्रचार करते हैं ना, उनको भाव कैसे होना चाहिए। प्रचारक का भाव ऐसे होना चाहिए, हम प्रचारक है नहीं, हम गुरु परंपरा के, हमारा गुरु के हाथ में एक खिलौना है, खिलौना अंग्रेजी में बोलते इंस्ट्रूमेंट। हम प्रचारक है नहीं, हम कैसे प्रचारक, हम क्या भागवतम का क्या जानकारी ज्ञान है, क्या जानते हैं भागवतम का, हम कैसे प्रचार करेंगे। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारा 3 मिनट का लेक्चर किसका काम में आएगा। अगर मेरी ये ग्रंथ दो तो ग्रंथ के स्पर्श में उन लोग का जीवन बदल जाते हैं। इसलिए ग्रंथ हम लोग जब प्रचार करते हैं ना, हम लोग पहले ग्रंथ उसी व्यक्ति को हाथ में डाल देते हैं, पहले ग्रंथ देते हैं उनको। हम लोग हमारा हाथ में ग्रंथ लेकर उनको प्रीचिंग नहीं करते हैं, ग्रंथ उसी को हाथ में डाल देते हैं। ग्रंथ के स्पर्श से उनका चित्त बदल जाते हैं। और इतना सुंदर ग्रंथ, जैसे देखिए अभी जो भागवतम है ना, बॉम्बे से छपता है, बंगाली पहले मायापुर से छपता था, लेकिन अभी बॉम्बे से प्रिंटिंग हो रहा है। भागवतम का जो क्वालिटी है ना, सब आगे तो इंग्लिश क्वालिटी था, अभी सब एक ही क्वालिटी में आ गए, सब क्वालिटी एक ही क्वालिटी। तो इतना स्टैंडर्ड किताब, धर्म पुस्तक इतना स्टैंडर्ड दुनिया में है नहीं। और इसमें जो पिक्चर डाला है ना, पिक्चर, पेज, लेटर, बाइंडिंग, जो पिक्चर में है, वो छवि देख देख कर लोग भक्त बन जाते, सिर्फ पिक्चर। और इसको छोड़ के जितना ग्रंथ है बाहर में,
देखिए हमारा इंडिया में एक संस्था है गोरखपुर वाले, उन लोग का बहुत सस्ता किताब है। हम लोग का महंगा है मतलब महंगा ही है, मतलब ये महत्वपूर्ण है। लेकिन गोरखपुर का जो किताब है इतना सस्ता है, और उसी किताब में जो कृष्ण का पिक्चर है ना, देखिए ये आपको लगेगा कि कृष्ण कितना दिन भूखा रहे, उनको खाना पीना मिला नहीं, एक लट्ठी के ऊपर भर देकर खड़ा है कृष्ण, इतना पतला दुबला हो गया कृष्ण। क्यों ना प्रभुपाद के किताब में जो पिक्चर है ना, छवि है, प्रभुपाद अपना आंखों से भगवान को दर्शन किए। ये तो हम लोग को जानकारी है ना, प्रभुपाद अपना आंखों से भगवान को दर्शन किए कि नहीं किए। प्रभुपाद भगवान की मुखारविंद से वो वाणी, अमृतमय वाणी अपना कान से सुन चुके हैं। प्रभुपाद अपना नाखों से भगवान के शरीर के जो सौगंध वो ग्रहण किए। पूरा पंच इंद्रिय से प्रभुपाद भगवान को उपलब्धि किए। ये उपलब्धि के बाद है ये ग्रंथ का इतना पावरफुल। और प्रभुपाद भगवान कैसे, उनका दर्शन कैसे अपना आंखों से देखकर प्रभुपाद उनके शिष्य लोगों को ऐसे गाइड किए, कृष्ण की पिक्चर ऐसे होना चाहिए। और हर मंदिर में, हर इस्कॉन मंदिर में इतना सुंदर सिंगर प्रभुपाद ही सिखा। प्रभुपाद की पिक्चर इतना सुंदर रहते, रामानंद सागर भी प्रभुपाद की पिक्चर हायर करके उनके सीरियल बनाए। एक भागवत 1996 साल में जब इस्कॉन का प्रभुपाद की शतवर्ष था, उसी साल हमारा बांग्ला में भागवतम की प्रकाश हुआ, मतलब ट्रांसलेटर होकर प्रकाश हुआ। तो उसी साल भागवतम की बहुत प्रचार हुआ 96 में, 1996 में। तो मैराथन था, एक कहानी, सचमुच कहानी में बताऊं, मैराथन था, प्रचार हुआ, तो एक दिन सिर्फ कुछ नहीं प्रचार हुआ, हम लोग को बहुत बुरा लगा, दिन भर कुछ प्रचार नहीं हुआ। ठीक शाम के समय एक भक्त लोग बुक बैग लेकर दुकान घूमते हुए, एक दुकान में एक व्यक्ति आकर ने पूछा, अच्छा आपके पास इस्कॉन की गीता है? बोले हम तो इस्कॉन की किताब लेकर आए। तो इस्कॉन का किताब दिया। उनको बहुत खुश हुआ, क्योंकि लास्ट 3-4 साल इस्कॉन की गीता ढूंढते ढूंढते उनको मिला नहीं। तो गीता की दाम 100 रुपया था। तो ब्रह्मचारी ने, जो ब्रह्मचारी प्रचार करने में गए थे, उन्होंने कहा इस्कॉन की गीता को आपको कैसे मालूम पड़ा? इस्कॉन की गीता में आपको कोई जानकारी है? बोले मैंने एक बार शहर में एक बाजार में एक गीता देखा था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो तब से मैंने ढूंढा ये गीता कहाँ मिले। तो गीता ले लिया। तब ब्रह्मचारी ने कहा अच्छा सर आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर। तो ब्रह्मचारी ने कहा सुनिए, ये मैराथन चल रहा है, ये गीता हम लोग फ्री देते हैं, अगर आप इससे एक बड़ा ग्रंथ है लेंगे तो। क्या ग्रंथ? बोले भागवत। बोले भागवत ऐसा ग्रंथ है, पूरा सृष्टि तत्व, कृष्ण लीला, नरसिंह लीला, राम लीला, बहुत सारी पिचिंग की, आधा घंटा। तो लोग कन्विंस हो गए, मास्टर लोग। बोले मेरे पास लेने के तो इच्छा है, लेकिन पैसा नहीं है। बोले सर आप एक काम कीजिए, आप एड्रेस देकर आप किताब ले लीजिए, तो नेक्स्ट महीना आप दरमा मिलेगा, नेक्स्ट 2 महीने में इंस्टॉलमेंट में आप पूरा पेमेंट कीजिए। तो मास्टर बहुत खुश हो गया। मास्टर ने बाजार से 2 नया बैग खरीद किया
भागवतम घर में ले गए बहुत खुशी से। लेकिन जैसे घर में पहुंचे उनके बीवी बोले क्या है, बोले ये वैदिक ग्रंथ मतलब गीता भागवतम इतना पूरा झगड़ा। अरे बच्चा को किताब नहीं खरीद करते हो, ये करते हो, नहीं ये नहीं, घर में ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, इतना पैसा कितना दाम है। अरे मास्टर का दाम बोलने का साहस नहीं था। तो क्या इतना झगड़ा क्या करे, घर में बैग छोड़ के भागे वहां से, उनके एक कॉलेग के घर पर पहुंचे, पूरा विस्तार करके कहानी बताया, घर का कहानी। उन्होंने कहा देखो इस्कॉन का एक सुंदर किताब मैंने खरीद किया, बहुत इच्छा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं पढ़ूंगा, लेकिन मेरा स्त्री इतना तंग किया, क्या करो, तो आप थोड़ा सहायता कीजिए। बोले क्या सहायता करना, वो किताब आपके घर में रखेंगे, रिटायर के बाद दोनों आपस में पढ़ेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो उस रात वहां बिताए, नेक्स्ट दिन वहां से ड्यूटी भी किए प्राइमरी स्कूल में। ड्यूटी के बाद स्कूल छुट्टी होने के बाद घर में आए, घर में आके कहा वो किताब कहाँ, वो किताब दे दो, मैं साधु को फिर वापस दे दूंगा। तो बीबी ने कहा कौन सा किताब, अरे कल मैंने लाया ना 2 बैग किताब। बोला हाँ हम तो जानते हैं वो किताब है घर में, लेकिन वो किताब घर में रहेगा। मतलब क्या हुआ, रात में जैसे घर वाले घर छोड़ के गए तो बीबी और बच्चा, एक लड़का था 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बीबी और बच्चा पूरा किताब खोल के किताब को पिक्चर देखे सब। लड़के ने कहा माँ मम्मी देखो कितना सुंदर कृष्ण ठाकुर है, कितना सुंदर, एक एक पिक्चर देख देख के 18 किताब रात भर बिताए, पिक्चर देख देख के बिताए। तो लड़के ने कहा मम्मी ये किताब घर में रखो मम्मी, हम लोग हर दिन पिक्चर देखेंगे रात में, रखो ना प्लीज। तो ऐसे बीबी ने कहा एक किताब घर में रहेगा, तुम जाओ, किताब रहेगा घर में। तो मास्टर तो बहुत खुश हो गए, क्या हुआ ये लोग का। तो फिर किताब तो घर में रखे, लेकिन वो जो कॉलीग था और एक टीचर, उनके घर में किताब देना था ना, उन्होंने कहा अरे मेरा हाल क्या होगा, आपने कहा मेरे घर पर किताब लाएंगे तो मेरे के लिए और एक सेट खरीद कर दो। बस ये है प्रभुपाद के किताब की महिमा। आप स्पर्श कीजिए, प्रणाम कीजिए, सिर्फ दूर से दर्शन कीजिए, वही काफी है। अगर पढ़ेंगे तो भागवत में जो 2 श्लोक है ना, शब्द हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शस्त्र से भी तत्क्षणात्। जब पढ़ना चालू करेंगे, सुनना चालू करेंगे, भगवान हृदय में छिप जाते हैं। ये पूरा निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखदामृतम द्रव संजितम पीबतम भागवतम रसमालयम। ये रसमालाई, ये भागवत में रस केवल रसमलाई। कभी कभी हम लोग इस्कॉन में फेस्टिवल में जो फीस्ट होता है ना, रसगुल्ला खाते हैं। रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है इस्कॉन में, लेकिन फीस्ट में इतना आइटम होता है ना, खाते खाते जब रसगुल्ला आता है ना, तब हम लोग बोलते रस छोड़ के गुल्ला दो, रस चिप के एकदम गुल्ला। तो हम लोग रसगुल्ला खाते नहीं, गुल्ला खाते हैं, रस छोड़ के गुल्ला खाते हैं। लेकिन रसगुल्ला परोसे तो क्या खाएंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या खाएंगे, रसगुल्ला पूरा चाटते हुए खाएंगे। ये भागवत में ऐसे रसमलाई, आप जब से पढ़ने चालू करेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा महाराज। महाराज एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है,
तो एक प्रश्न पूछा है कि थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास. Is there a particular order for reading all the cantos in Srimad Bhagavatam? अब प्रभुपाद और मुखबंद जो इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा, हाँ, पहले मतलब प्रथम फर्स्ट कैंटो टू सेकंड कैंटो ऐसे पढ़ना चाहिए. और एक बात है, भागवतम अगर अपना पढ़ेंगे, अगर भगवान की कृपा होगा तो हम लोग समझ पाएंगे. लेकिन भागवत पढ़ने का असली विधि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा चैतन्य चरितामृत में, जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण. भागवत पढ़ना है तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना है. और क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु को जो प्रेमी भक्त है ना, उनके गाइडेंस में पढ़ना है. मतलब इस्कॉन में अभी बहुत सारे कोर्स चालू हुआ, भक्ति शास्त्र कीजिए, उसके बाद भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत. ऐसे हम लोग भागवतम पढ़ेंगे, उसी पढ़ने में हम लोग को थोड़ा जानकारी आ सकता है. अपना पढ़ेंगे तो अगर भगवान हृदय से हमको मतलब एनलाइटमेंट करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है भागवत समझना. तो पहले गीता पढ़ना चाहिए, गीता के बाद भागवतम, एकदम स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट कैंटो देन सेकंड कैंटो देन थर्ड कैंटो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए. थैंक यू महाराज. थैंक यू स्टेप बाय स्टेप क्यों? हाँ. ये भी प्रश्न हो सकते हैं, क्यों ना भगवान के जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं ना, चरण से दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते ऊपर में जाते हैं, मुखमंडल अंत में जाते हैं. इसी प्रकार भागवतम पहला पादो यदियो दो स्कंद, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, चरण, चरण से ऊपर थाई, नेबल पढ़ के ऊपर में जाएंगे हम. मैंने चैट बॉक्स में और एक मैसेज देखा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. रविपति दामोदर. Thank you, Maharaj. Yes. Maharaj, thank you so much. This late hour she came and give us this wonderful class. And tomorrow morning you have to get up early. Yeah. So no need to extend the question and answer. Okay. And thank you, Maharaj. So Rasamrit Prabhu will give the vote of thanks. Bharu Prabhu, it's okay. Okay. Yeah. And I want to just announce Prabhu ji, just तो अवतारी देश के भक्त अगर किसी को श्रीमद् भागवतम लेना है तो हम लोग बीबीटी से इंस्टॉलमेंट में भी देने के लिए रेडी है. आप सिर्फ प्रतिज्ञा कीजिए आप उनके, और आप थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में भी देने के लिए बीबीटी रेडी है. तो आज थैंक यू महाराज. ओवर टू यू रसामृत प्रभु. हरे कृष्णा. बीबीटी रेडी है. कोई बांग्लादेश के जो भक्त है बांग्लादेश मंदिर से में ले सकते हैं. हाँ. और बांग्लादेश मंदिर उन लोग का भी ये पूरा प्लान है, वो लोग घर में पहुंचा देंगे. और जो बंगाल में आसपास इंडिया में भी बीबीटी भी देंगे. मायापुर से भी हम लोग भेजते हैं. अगर किसी भी मायापुर के आसपास घर है, हम लोग को एड्रेस दे दीजिए, हम लोग भेज देंगे. बहुत सारे हम लोग को एड्रेस मिला शारजा से. शारजा हर 15 दिन में हमारा क्लास होता है ऑनलाइन में, तो उन लोग का बहुत भागवत प्रचार किया देगा. हम हर 15 दिन में हम आते हैं शारजा में, 15 दिन में आते हैं ऑनलाइन में. हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा. प्रभु जी सॉरी, और प्रश्न नहीं लेंगे. हमारे यात्रा लीडर ने बोला है अभी. जस्ट वोट ऑफ थैंक्स रसामृत प्रभु. चलेगा. अच्छा महाराज, खाली आप वो देख लीजिए, अमित प्रभु सर आपको गार्लैंड ऑफर कर रहा है, तो महाराज स्वीकार कर रहे हैं. महाराज हम माला स्वीकार करबेन, प्रसादी माला. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. तो अभी लेट हो गया है तो ऑब्वियसली हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट क्योंकि महाराज ने अपना इतना बहुमूल्य समय हमको दिया है और श्रीमद् भागवतम के बारे में इतना सुंदर रूप से भागवत के स्वरूप का महाराज वर्णन किए, और इसके लिए अवतारी देश यात्रा और सभी भक्त वृंद के बिहाफ पर हम महाराज को
अपना धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। तो महाराज आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से भागवत जिसके घर में होगा उसके घर में कोई अमंगल नहीं होगा। और हम लोग तो धामवास करने के लायक नहीं है और कई बार दूर भी होते हैं, लेकिन आपने कहा कि अगर श्रीमद् भागवतम किसी के घर में है तो वो धामवासी है, क्योंकि वहां पर कृष्ण राधा रानी के साथ में आके विराजमान होते हैं। और साथ साथ में सारे के सारे देवी देवता जो है वो भगवान की पूजा करने के आते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो भागवत के स्वरूप में पधारे हैं। भागवत जो है भगवान का स्वरूप है। तो भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण की वाणी है, कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन श्रीमद् भागवतम रसराज वृंदावन कृष्ण आपने कहा एक ब्रिज के जैसा है। और फिर अल्टीमेटली चैतन्य चरितामृत जो है वो किस भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए वो हमको बताते हैं। और आपने स्कंद पुराण का एग्जाम्पल देके महाराज बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से सारी नदियां और देवता भी जो है वो हमारे घर पधारेंगे अगर हम भागवत को वहां पे रखते हैं, और हमारा घर जो है वो तीर्थ बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने जैसा कहा है कि हर एक रिस्पेक्टेबल पर्सन शुड हैव भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत उनके घर में। और मेरा अनुरोध है कि घर घर में भागवत की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और भद्र पूर्णिमा के स्पेशल ओकेजन पे अभी आप सबसे कह रहे हैं और सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जितना ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सके वो हमको करना चाहिए। और आपने कहा स्पेशल पूजा भी होगी, प्रीचर, डोनर एंड बायर, तो नैमिषारण्य में और मायापुर में। और आपने एक और बात कही महाराज के 125वां ये जो आविर्भाव दिवस है प्रभुपाद जी का बर्थ एनिवर्सरी, उसमें कई लोग प्लेज करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अवतारी देश यात्रा हमने भी 125 सेट ऑफ श्रीमद् भागवतम का प्रतिज्ञा ली है, वचन लिया है कि हम इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पीरियड में। और बहुत सारे भक्त इसमें लगे हुए हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में महाराज। और आपने प्रश्नों का भी बहुत अच्छा उत्तर दिया कि क्यों घर में भागवत होना चाहिए, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए और प्रचारक का मूड क्या होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेके भागवत पढ़ना चाहिए, बहुत सारे कोर्सेस है करके भी भागवत पढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इतना अच्छी तरह से महाराज इसको समझाया है। और आज का ये जो क्लास है इतना उत्तम क्लास है श्रीमद् भागवतम के बारे में कि हर एक भक्त को इसको वापस से सुनना चाहिए और अपने जीवन में भागवत पढ़ के और भागवत को उतारना चाहिए और भागवत का प्रचार भी करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ग्रेस बहुरूप नरसिम्हा प्रभु, जगन्नाथ अच्युत प्रभु, रविपति दामोदर प्रभु और बाकी हमारे नामहट्टा के जितने सारे डिवोटी है जो आपका सुनने के लिए आए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। और महाराज ऐसी कृपा हमारे पे आप बरसाया कीजिए। और आज जितना अच्छा ये प्रवचन हुआ है प्रभु जी, और महाराज को हम बार बार बुला सकते हैं। बहुरूप प्रभु से निवेदन करेंगे कि हमको एटलीस्ट महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार महाराज का इस प्रकार से संग प्राप्त होगा तो बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज प्रसाद ग्रहण करो महाराज। प्रसाद लॉगआउट कर दिया आई थिंक। ओके महाराज लॉगआउट कर दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू बहुरूप प्रभु, थैंक यू यात्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So we will end the class, Prabhuji. Is there any announcement, Bahurup Prabhu? No, yeah, we have to join in the chanting, Prabhuji. Announcement we can do in that one, chanting. Okay, yeah. Sure. So Sure. सभी लोग, yeah, we will exit and we will join the chanting. हरे Okay. कृष्णा। हरे Thank you कृष्णा। everybody. सभी लोग ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद to every devotee. हरी हरी बोल। हरी बोल। थैंक यू हरे कृष्णा। सभी का प्रसादम। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। हरी बोल। हरि बोल। हरी बोल।